Hello and good evening. Welcome back to my channel. First of all, I would like to say thank you to each one of you for expressing your love and giving a lot of love and blessing to my last video. इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। Such kind words to hear. It has given me a lot of enthusiasm to create one more video, and I am back again to deliver something exciting, something new. So moving forward, I would like to share the topics which we will be discussing today. I have written it on the board. The first topic is English डर नहीं, it's a skill. How is it a skill? We will be discussing about that in this video. We'll be also talking about the history of English. So we will be talking about that, and our third topic of discussion would be India is a multilingual country. So why this language, the English language, matters in India? Why is it so popular? Yet there are a lot of speakers who are not that much confident in speaking English. Being such a popular language in India, still there are a lot of speakers who are still not confident. They have the skill, but they don't have the correct mindset. They don't have the positivity inside them that yes, I can do it, I can also speak. They have that kind of capability of speaking, but yet the outside noise, the environment, everything, that is not helping everyone to come forward and be confident while speaking English. These are the things we'll be discussing today. And the last topic which we'll be discussing is how to kill this fear. We all know that we have the fear inside. How do I speak? Initially, when I was starting, I thought that yes, I would be also recording my video. Facing my students in my class is a bit different thing, but facing the camera is something it's quite unusual because I have not experienced this before in my life. So this has also created a scene in my mind like, yeah, I can't do this, a lot of negativity, but I fought through that. I fought through that period, yeah, that yes, I can do it. So these are the things we'll be discussing today: how to kill that fear, how to overcome the fear, and then we will be a natural speaker. We can be a good speaker. How to interact with people, how to understand things in English, basics, words, basic sentences, how to understand that. We will be discussing this in our video. Without wasting any time, let's get started. हमने अपने लास्ट वीडियो में ये बात किया था कि हम NCERT, इंग्लिश ग्रामर, एडवांस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक और CBSE करिकुलम्स के बारे में जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो भी, साथ में स्पोकन इंग्लिश, ये सब चीज़ हम सीखेंगे. लेकिन हमारी जर्नी आज स्टार्ट होती है और जर्नी का पहला कदम हम रखेंगे आज इंग्लिश के बारे में जान करके. जब भी मैं आपके सामने इंग्लिश वर्ड, खाली इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं खाली इंग्लिश बोलता हूँ आपके सामने, तो आपके मन में भी एक डर फील होता होगा. नहीं इससे हमारा कोई फैमिलियरिटी नहीं बनता. ये हमारे लैंग्वेज, ये फैमिलियर नहीं है हमसे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, शायद हम नहीं बोल पाएँ. ऐसे ऐसे तरह तरह की बातें और इतनी सारी नेगेटिविटी आपके दिमाग में फैल जाती है जस्ट बिकॉज एक वर्ड केवल इंग्लिश. जैसे ही हम इंग्लिश सुनते हैं हमारा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. वाइज कहा जाए या जिस भी तरीके से देखा जाए, हमने अपने दिमाग में इतनी नेगेटिविटी पाल रखी है कि नहीं, आई कांट बी अ गुड स्पीकर, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल ही नहीं पाऊंगा. सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती है वो यही होता है. बट हमें ये चीज़ समझना होगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है. इट इज़ फार मोर देन दैट. हमने अभी तक इस लैंग्वेज को समझा नहीं है. ये लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्किल है. जैसे हमें साइकिल चलाना है, हम साइकिल चलाते हैं. साइकिल चलाना क्या है? इज अ स्किल. कंप्यूटर, इफ यू आर यूजिंग कंप्यूटर, व्हाट इज दैट? इट इज अ स्किल. जो मोबाइल फोन्स हम हाथ में लेके चलते हैं, सो वी हैव टू लर्न दैट स्किल. हमें वो स्किल सीखना होगा, कैसे हम एक मोबाइल चलाना या कैसे किसी भी स्किल को, साइकिलिंग एक स्किल है, स्विमिंग एक स्किल है, मोबाइल यूज करना, कंप्यूटर यूज करना, एवरीथिंग इज अ स्किल. सिमिलरली उसी फैशन में लर्निंग इंग्लिश इज टू अ स्किल. इस
हाइप को दिमाग से प्लीज हटा दीजिए कि हाँ, इंग्लिश इज वेरी टफ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. हमें ये चीज समझना होगा कि आखिरकार जिस इंग्लिश से हमें इतनी घबराहट है, आखिरकार वो आई कहां से, क्या अचानक पैदा हुई है, क्या बोला तूने? कुछ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं. आज हम उसको बहुत छोटी हिस्ट्री मैं इसके बारे में बताऊंगा. हिस्ट्री लिखने से आप प्लीज घबराइएगा. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. लेक्चर नहीं देने वाला इस हिस्ट्री के बारे में, बट ये इसको बहुत शॉर्ट रखा जाएगा. एक कहानी के माध्यम से मैं आपके दिमाग में भर दूंगा कि भाई ये इसका आखिरकार ये लैंग्वेज जो इवॉल्व होकर के आज ग्लोबल लैंग्वेज कहला रहा है, ये आखिरकार आया कहां से, ये है क्या. तो इसके लिए हमें बहुत साल पहले पीछे जाना पड़ेगा. लगभग 1500 साल पहले यूरोप से 3 ट्राइब्स आए. 3 ट्राइब्स जो कि सैक्सॉन्स, ज्यूट्स और एंगल्स थे. ये 3 ट्राइब्स जब इंग्लैंड आए तो उन्होंने अपनी अपनी बोलियां मिलाई. जो वो बोलते थे उन्होंने मिक्स किया और ये तीनों बोलियां मिल करके एक नया लैंग्वेज बना जिसे हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं. वहां से इंग्लिश का जन्म हुआ जो कि ओल्ड इंग्लिश है. और ये इंग्लिश अभी के इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है. मैं अगर आपको एक लाइन ओल्ड इंग्लिश का सुनाना चाहता हूं, वाइट वी गार्डेना इन गियडागम, ये बेवुल्फ की पहली लाइन है ना कंफ्यूजिंग. आपको क्या कुछ समझ में आया? ये खुद ही में इतना कंफ्यूजिंग है. शायद आज ये इंग्लिश अगर हमको पढ़ना होता तो बहुत टफ होता इस लैंग्वेज, और शायद ये लैंग्वेज आज ग्लोबल लैंग्वेज भी नहीं बना होता. ऐसे ही फ्रेंच, जापानीज, हिंदी, बंगाली के जैसा कोई एक लैंग्वेज होता जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में बस लिमिटेड हो गया होता. लेकिन आज ये ग्लोबल क्यों बना? क्योंकि किसी भी एक रैंडम कंट्री में अगर हम विजिट करते हैं तो वहाँ एक लैंग्वेज बेसिक चलती है, वो इंग्लिश है. किसी भी इंडिया के भी हम किसी पार्ट्स में जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया में अगर हम जा रहे हैं, शायद उसको तमिल ना आए उस पर्सन को, या हमको शायद तमिल ना आए, या उस पर्सन को हिंदी ना आए, लेकिन मे बी वो इंग्लिश से हमारा इंटरेक्शन हो सके. तो इंग्लिश इसीलिए क्या बन चुकी है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बनी है. और ये ग्लोबल लैंग्वेज आज जितना इम्पॉर्टेंट है, हमें उसकी रूट्स को समझना जरूरी है. तो यहाँ से ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत हुआ. ये हिस्ट्री की जब मैं बात करूँगा तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश आज के जैसा नहीं था उस समय. इंग्लिश वही नहीं रहा जो आपने अभी सुना. ये चेंज हुआ, ये इवॉल्व करते गया. अब हुआ वाइकिंग इन्वेशंस. जब वाइकिंग्स आए उन्होंने अपने कुछ वर्ड्स दिए, जैसे एग, नाइफ, देम, देयर, इस तरीके के वर्ड्स, स्काई, इस तरीके के वर्ड्स ऐड होते गए इंग्लिश में. और इंग्लिश अब ब्रॉड होता गया, बड़ा होता गया, बढ़ता गया. जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें कुछ बहुत चीज़ें ऐड हुई, रिप्लेस हुई, और तब जाके वाइकिंग्स ने अपना लैंग्वेज को ऐड किया. आपको क्या रियलाइज़ होता है कि स्काई, आपको लगता होगा कि ये स्काई वर्ड जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है, बट नहीं, ये एक नॉर्स लैंग्वेज है. नॉर्स मतलब ओल्ड वाइकिंग लैंग्वेज. ना ये इंग्लिश है ना ये हिंदी है, ये ओल्ड वाइकिंग लैंग्वेज है. इस तरह से लैंग्वेज जो है वो इवॉल्व करता गया. डोंट फील लाइक एन आउटसाइडर. आपको इंग्लिश से भागने की, घबराहट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज एन आउटसाइडर. इंग्लिश खुद एक आउटसाइडर है. उसने अपने लैंग्वेजेस को मिक्स करके एक नया लैंग्वेज रिफ्रेम किया है. तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है. इसके बाद नॉर्मन्स जो हैं वो फ्रांस से इंग्लैंड आए. 1066 में वो आए इंग्लैंड, और उन्होंने कुछ अपने वर्ड्स ऐड किए, जैसे गवर्नमेंट, कोर्ट, जज, ये सब उनके दिए हुए वर्ड्स हैं. ये इनिशियल इंग्लिश वर्ड्स नहीं हैं. ये जब वर्ड्स मिक्स होकर के लैंग्वेज चेंज हुआ, तब इवॉल्व होते होते ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में आया. और ये इंग्लिश वैसा ही नहीं रहा जैसे आज हम उसको पढ़ रहे हैं. इस तरह से वर्ड ऐड होते गए, मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल एंड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ये हमारा इंग्लिश है. और इसी प्रकार से हजारों वर्ड्स ऐड हुए, इसमें हजारों वर्ड्स ऐड हुए हैं, और तब जाके इंग्लिश बना है. आप इमेजिन करके देखिए, गांव में रहने वाले जो ट्राइब्स थे वो पिग कहते थे, गोट कहते थे, शिप कहते थे, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते थे. लेकिन शहर से अमीर नॉर्मन्स जो थे वो जो वर्ड यूज़ करते थे वो अलग था, वो डिफरेंट था.
वो काऊ नहीं बीफ कहते थे, वो गोट नहीं मटन कहते थे, वो पिग नहीं पॉर्क कहते थे। इस तरीके से नए नए वर्ड्स का इजाद हुआ और ऐसे वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में ऐड होते गए और बहुत सारे वर्ड्स का ऐड होते ही इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। जिस तरह से इवॉल्व करती गई पूरी इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश से वाइकिंग्स लैंग्वेज कुछ ऐड हुए, कुछ नॉर्मन्स आए, उन्होंने ऐड किया तो ओल्ड से मिडिल में आया और फिर मिडिल से वो चेंज हुआ, फिर ब्रिटिश एम्पायर का राज आया। आपको भी पता है कि एक समय था जब ये कहा जाता था कि सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। जहाँ देखोगे वहीं आपको मिलेगा, आपको हर तरफ ही ब्रिटिश एम्पायर मिलेगा, जहाँ, क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था और सारे एरिया में, पूरी दुनिया में वो छाए हुए थे। तो वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अपना लैंग्वेज लेकर के गए और वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में ये मिलती गई। ये ब्रिटिश लैंग्वेज जो था वो मिलता गया और तब जाकर के ये लैंग्वेज इवॉल्व होते 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 तब जाकर के ओल्ड इंग्लिश से, मिडिल इंग्लिश से, फिर मॉडर्न इंग्लिश जो आज हम पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश तब बना। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए, वो लैंग्वेज जो खुद अपना नहीं है, जिसके खुद वर्ड्स अपने नहीं हैं, जो खुद इतने सारे चीज़ों के मिक्सचर से बना है, उससे डरना क्यों है आखिरकार? हमें उससे अच्छा। क्यों डरना है? हमें तो इससे पहले घबराना ही घबराना क्यों नहीं है? ठीक है, ये भ्रम हम अपने दिल से ठीक है। निकाल दें। इसे हम अपने इंडियन ठीक है, समझ लैंग्वेज गया। में, हमारा इंडियन एक रेसिपी है समझ जो कि गया। बहुत फेमस है, बहुत, उसे हम खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी उसी प्रकार की एक खिचड़ी है जो कि बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे वर्ड से और बहुत सारे लैंग्वेजेस से, बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत कुछ ऐड किया, तब जाकर के मिलते 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 ये लैंग्वेज इवॉल्व करते करते आज आपको जो मिला है बना बनाया पकवान, जिसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, वो बहुत साल पहले बहुत डिफरेंट था। मैंने आपको वो लाइन सुनाया, आपको याद ही होगा कितना डिफरेंट लैंग्वेज था, लेकिन आज वो लैंग्वेज और डिफरेंट हो चुका है। हमें आज जो मॉडर्न इंग्लिश मिला है वो ओल्ड इंग्लिश के मुकाबले बहुत इजी है। मॉडर्न इंग्लिश बहुत इजी है। जो हमें ओल्ड इंग्लिश था, वो ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश और बहुत टफ था। वो पढ़ते तो शायद हमारा कंसंट्रेशन ही काम नहीं करता, हम पढ़ ही नहीं पाते। लेकिन आज जो हमें इतना एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी मिला है, ये इमेजिन करके देखिए कि हम आज जिस मॉडर्न एरा में हैं, हम मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसे पढ़ना टफ नहीं, बस यहाँ से आपको सोचने की ज़रूरत है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा।